Hello friends, welcome to channel. So in this video we are going to start the paper 1. So पेपर 1 को हम लोग डिस्कस करेंगे और स्टार्ट करेंगे पेपर 1 के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड वी आर आल्सो डिस्कसिंग द पेपर 2. सो अभी तक हम लोग केवल पेपर 2 को ही डिस्कस किया करते थे बट फ्रॉम टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द पेपर 1 आल्सो एंड सम ऑफ द चैप्टर फ्रॉम द पेपर 1 लाइक द यूनिट 5 that has the some mathematical reasoning and the unit 7 इसमें जो डेटा इंटरप्रिटेशन है वो सभी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे. ओके, सो बेसिकली दीज यूनिट हैज़ बीन रिकमेंडेड बाय सम स्टूडेंट. उनके द्वारा बोला गया था कि सर कुछ पेपर 1 के जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होते हैं या मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस होते हैं उनको सॉल्व करने का कोई बेस्ट मेथड जो है उसको बताइए या फिर इसके जो है यूनिट 5 यूनिट 7 के कुछ स्पेशल वीडियो बनाने चाहिए. सो आई डिसाइड कि ये यूनिट 5 और यूनिट 7 को डिस्कस कर लेते हैं थ्रू दिस वीडियो लेक्चर. ओके, सो गाइज वी विल कवर दिस इम्पोर्टेंट चैप्टर इन दिस पेपर 1 एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम आल्सो. यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो व्हाट वी आर गोइंग टू कवर इन पेपर 1, दीज आर द टॉपिक. यूनिट 5 दैट इज मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड. लाइक टाइप्स ऑफ द रीजनिंग, कितने प्रकार की रीजनिंग होती है उसको देखेंगे. नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोड एंड रिलेशनशिप, these are the part of math reasoning. And the mathematical aptitudes like the fraction, time and distance, ratio, proportion, percentage, profit loss, okay, interest and the discount, average. So these are the part of the aptitude. And apart from the unit 5 unit 7 that is the data interpretation. So इनमें ये सभी के सभी चैप्टर को कवर किया जाएगा. So these this unit will be covered in the upcoming video, but in today's video we will cover this particular topic, that is the mathematical aptitude. Okay, so first of all we have to understand the percentage. इसको क्यों पहले सबसे पहले पढ़ेंगे, इसका कारण है so because we are going to solve the all the question without the formula. फॉर्मूले का यूज़ नहीं करना है. okay, we just use the common sense. Because once you start the solve the question with the formula, it will take so much time. Okay, and you can't apply the formula on all the questions. कुछ क्वेश्चन अगर नए टाइप के आ जाते हैं तो then you can't apply the formula. Okay, so these are the drawbacks some kind of the formulas. And especially in 2021 अगर आज आप भी फॉर्मूले का यूज़ करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, that means you are out of the competition. So this is the right time to start the solve the question without the formula and use your common sense. Because ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं है परसेंटेज क्या होता है. You know very well what is percentage. When you score the marks in the exam, you just easily calculate them कि कितनी परसेंटेज आपके आए हैं. अगर आपके पेरेंट्स आपके फैमिली वाले पूछते हैं कि बेटा आप कितना परसेंट आया, तो आप कैसे निकालते हैं, आपको पता है. So you know very well what is the percentage, कैसे निकालते हैं. So the common thing about the percentage you know very well, but when we use this percentage in the question, then the question become very difficult for you. So this is the biggest problem for the all the student कि जब भी क्वेश्चन पढ़ते हैं उसमें जो परसेंटेज कहीं पर मेंशन रहती है एंड दे यूज सम काइंड ऑफ फार्मूला टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन. उसके बाद जो होता है आपको पता ही है कि दे वेस्ट सो मच टाइम ऑन द वन क्वेश्चन. सो दिस इज द प्रॉब्लम. सो बट in the today video we cover this topic. So percentage, this is the common for all the topic like fraction, time and distance, loss, profit loss, interest and the discounting. Because we are not going to formula, we are not going to use the formula, so we have to use some kind of the common things that can be similar in all the concept or all the topic. So this is the common thing, that is percentage. Percentage we can use in all the question, any types of question we can easily solve by the percentage. Okay, so this is going to be very interesting topic, very interesting discussion for today. So now let's understand what is the percentage. Percentage क्या होता है. So when I ask this question percentage क्या होता है, तो some student always say sir percentage means 100 and this is the biggest scam.
यू कैन से बहुत ही गलत है। परसेंटेज मीन बेसिकली 1/100। सो व्हाट इज़ द मीन? किसी भी कोई भी क्वांटिटी है या कोई नंबर है, उस नंबर को आउट ऑफ 100 डिस्क्राइब करना, एक्सप्रेस करना ही परसेंटेज कहलाता है। सो व्हाट इज़ द परसेंटेज? परसेंटेज इज बेसिकली आउट ऑफ 100, नॉट 100। बिकॉज जब आप 100 बोलते हैं दैट मीन्स कि अगर 1% का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब तो 100 हो जाएगा ना। सो दिस इज बेसिकली रॉन्ग। बेसिकली 100% मतलब होता है 1%, एक 1 मीन्स 100%। सो दिस इज द basic thing that you have to remember all the time. When you solve the question, you should remember कि percentage means 1/100, not 100. Okay, and this percentage basically came from the Latin word that is per plus cent equal to percent. Cent means 100 and per means, तो जैसे मैंने बताया आप 1/100. सो ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा कि कहाँ से लिया गया है, लेटिन वर्ड है कि फ्रेंच वर्ड है, but you should have some kind of the basic information about the things that you are going to study. So this is the basic term for the percentage कि आपको पता होना चाहिए कि परसेंटेज क्या होता है। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल एक कोई एग्जाम्पल लेके देखते हैं और आपका यहाँ पर टेस्ट करेंगे कि आपको कितना आता है। लाइक दो नंबर लेके देख लेते हैं, 27, 25, 27 एंड 50, 75. ओके, so these are the two number. If I ask you, so what is the, ये 27 जो है कितना है 75 का? so you just use the your best formula जो कि आप यूज़ करते आए हैं बचपन से, ये बटे b इंटू 100। यहाँ पर आप इसको a मान लेते हैं, b मान लेते हैं इसको, यहाँ पर x y। so you just put 27 and 75 and just multiply by 100, so it will give you 36. ओके, सो दिस इज द आंसर। और आप बोल देंगे सर 36 आया है, एंड दिस इज बेसिकली या सिंपल, वेरी सिंपल। एंड इफ आई आस्क यू कि काइंडली आप क्वेश्चन नंबर सेकंड जो आपको दे रहा हूँ, ये आप काइंडली बताइए कि अगर 36.27 है, सो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ 75? कि ये जो नंबर है 36.27 ये कितना है 75 का? सो आप अगेन इसी फार्मूले का यूज़ करेंगे, 36.27 बाई 75, और नाउ आप इसको आप कैलकुलेट करते रहेंगे और अपना जो समय है व्यर्थ करते रहेंगे। इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व नहीं हो पाएगा और आपका क्वेश्चन छूट जाएगा, आपका समय भी बर्बाद हो जाएगा। सो दिस इज द अप्रोच जनरली स्टूडेंट यूज दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, दे जस्ट यूज द फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला। ओके, बट व्हाट आई एम एक्चुअली गोइंग टू टेल यू हाउ टू अप्रोच दिस काइंड ऑफ नंबर। ओके, so like I said 27 and 75, okay, and second जो था 36.27, and so which is what percentage of 75? मतलब ये है कि जो नंबर है कितना है 75 का, और 27 जो है कितना है 75 का। सो यहाँ पर हमने बात की परसेंटेज की, मतलब आउट ऑफ 100। सो जब भी कोई टर्म आउट ऑफ 100 दी जाती है देन वी कैन इजीली कैलकुलेट आउट ऑफ 100 में। सो इसी प्रकार से आपको 75 को भी 100 बनाना है। ओके, जैसे ही आप 100 बना लेंगे आप इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे, क्योंकि आपको जब 100 दिखता है तो आप इजीली कैलकुलेशन कर लेते हैं। ओके, सो 100 बनाने के लिए आपको कितने जोड़ने होंगे इसमें? 25। सो व्हाट इज द 25 ऑफ 75? मतलब 25 75 का क्या होता है? ये होता है 1/3। ओके, ये कैसे आया फ्रैक्शन, इसको हम लोग देख लेंगे अभी। एंड इसी प्रकार से अगर आपने 1/3 यहाँ पर जोड़ा है तो आपको यहाँ पर भी मेंशन करना होगा। सो 27/3 करेंगे तो ये आएगा आपका 9, और 27 में 9 जोड़ देंगे तो ये आपका हो जाएगा 36। जो आपका आंसर आया था वही मेरा आ रहा है। ओके, बट समय जो है, समय दोनों में बराबर लगा, बट जब आप इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे तो आपका समय बहुत ज़्यादा सेव हो जाएगा। जैसा कि लास्ट में आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाया होगा, बहुत काफ़ी समय लगा होगा, बट व्हेन वी यूज दिस अप्रोच कि बेसिकली आपको 100 बना देना है किसी भी नंबर को। 75 को 100 बनाने के लिए मैंने आपको बताया है कि 1/3 करेंगे आप। 1/3 बेसिकली ये इसका मतलब है कि
इसके बीच में जो डिफरेंस है 25 मतलब होता है कि 75 को आपको 100 बनाना है, तो 25 आपको जोड़ना होगा 75 में। ओके, और 25 कितना होता है 75 का? 1/3 होता है ना, 25/75। सो इस प्रकार से आपको 1/3 यहाँ पे ऐड करना है, तो आपको इस तरह भी करना पड़ेगा। सो आप देख सकते हैं कि ये जो नंबर दिया हुआ है, इसको जब 3 से डिवाइड करेंगे तो आपको देखकर बड़ी खुशी हो रही होगी कि बहुत ही सिंपल हो गया। अब ये जो नंबर है इसको तो आप इजीली जोड़ ही सकते हैं वैल्यू में, देन इट विल बिकम कितना परसेंट हो गया? 48.36। सो जो कैलकुलेशन आप इस प्रकार से कर रहे थे 37.27 बाई 75 इंटू 100, इसका कैसे करते हैं आपको पता नहीं था, करते जाते। और सो दिस इज द बेसिकली कॉम्पिटिशन एग्जाम, यू कांट सॉल्व द क्वेश्चन इन दिस वे, बहुत सारा समय आपका बर्बाद हो जाएगा। सो जस्ट फॉलो दिस अप्रोच जस्ट टू मेक द नंबर इन द परसेंटेज or out of 100. So once you make it out of 100, that will be more easy to calculate the value. So this is the 48.36%. So this is the right approach. और यहाँ पे जो मैंने यहाँ पर किया है 1/3 या जो भी, तो बेसिकली ये परसेंटेज को मैंने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया है, तो 1/3 मेंशन कर दिया है। तो इसी चीज़ को आपको याद करना है, या बोल सकते हैं इसको समझना है। इसको हम लोग अभी नेक्स्ट स्लाइड में अंडरस्टैंड करेंगे कैसे कोई अगर नंबर आपको दिया है, जैसे कि यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल 48 ये जो नंबर आया है, तो अगर मैं इससे बोलूँ कि आपको ये फ्रैक्शन कितना होगा, तो फ्रैक्शन के लिए आप क्या करते हैं, इसको आप फिर दोबारा बाय 100 करेंगे, फिर वैल्यू निकालेंगे। जैसे कि 1/2 कितना होता है? 50%। मैं अगर आपसे बोलूँ कि 50% को फ्रैक्शन में लिखना है, तो आप 1/2 कर देंगे, क्योंकि आपको पता है, सिंपल है। अगर यहीं पर मैं बोल दूँ कि ये 75.25 है, इसको आप फ्रैक्शन में लिखिए, तो आप नहीं लिख पाएंगे। सो दिस इज द प्रॉब्लम, इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं ताकि आपका जो है क्वेश्चन सॉल्व करने का जो तरीका है उसमें काफ़ी आसानी हो, क्वेश्चन इजीली समझ पाए। ओके, उसके कुछ एप्लीकेशंस भी है, उसको अंडरस्टैंड कर लेंगे कि कैसे जो परसेंटेज है उसको फ्रैक्शन में यूज़ करते हैं और कैसे फ्रैक्शन को परसेंटेज में यूज़ करते हैं। ओके, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम कोई एग्जाम्पल लेके देखते हैं, कोई नंबर दिया है। ओके, दिस इज द नंबर। अगर मैं कहूँ कि इसमें कोई परसेंटेज निकाल के देख लेते हैं, 12.5%। ओके, सो व्हाट इज द इस नंबर का ये अगर मैं इस परसेंटेज से मल्टीप्लाई करूँगा तो काफ़ी डिफिकल्ट होगा आपको सॉल्व करना। सो 12.5 का 2 इसका मतलब होता है 1/8। ओके, 1/8 कैसे आया मैं आपको बताता हूँ अभी। जब 1/8 करेंगे तो आप इसको ईजिली डिवाइड कर पाएंगे और इसकी वैल्यू आसानी से आपको मिल जाएगी। सो वही आपको मैं बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से परसेंटेज को नंबर में कन्वर्ट करते हैं, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, ताकि जो है आपकी जो समस्या है उसका समाधान हो पाए। ओके, so this is the first structure that how to convert the fraction to the percentage and how to convert the percentage into fraction। इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन जो है आपको आसान लगे समझने में। ओके, सो 1% का मतलब कितना होता है? राइट फ्रॉम हेयर 1% मीन्स 1/100, क्योंकि मैंने बताया था 100 का मतलब परसेंट का मतलब होता है आउट ऑफ 100। इसको हमेशा याद रखना है। इसी प्रकार से जब 100 यहाँ जाएगा तो आप बोल सकते हैं 1 = 100%। ओके, 1/2 कितना हो जाएगा? ये आप डिवाइड कर देंगे 1/2 से, तो 50% हो जाएगा। ये आपको पता रहता है, सिंपल है। 1/3 भी मोस्ट ऑफ द लोगों को पता होता है कि 33.33% होता है। ओके, या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 33 1/3, दोनों सेम ही है। नेक्स्ट 1/4 मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को पता होता है कि ये 25% होता है। 1/5 एवरीबडी नो दैट इज 20%। एंड when we written the 1/6, so it is difficult for every most of the student कि नहीं पता होता है सभी को, 16.66 होता है। एंड यू कैन आल्सो राइट दिस नंबर एज 16 × 2/3। ये कैसे आया इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। 16 × 2/3 का मतलब क्या होता है? 16 × 3 + 2/6, 3, यही है ना इसका मतलब। ये तो बेसिक है, पता ही होगा आपको। सो 16 × 3 48 + 2/3, इट बिकम 50/3%। सो 50/3% का मतलब मैंने बताया था 1/100 है। सो ये जस्ट ये बन जाएगा आपका 1/6। सो इस प्रकार से 1/6 आपका बन जाता है ये।
ये आपका फ्रैक्शन में है, एंड दिस इज द परसेंटेज वैल्यू, कि जब भी आपको परसेंटेज में अगर ये वैल्यू दी जाएगी तो आपको इसको मल्टीप्लाई नहीं करना। जैसे किसी विलेज की पॉपुलेशन 2858 है और उसकी वृद्धि दर है, अर्थात जो ग्रोथ रेट है एक साल का, वो 16.66 है। और पूछा गया क्वेश्चन में कि एक साल बाद बताइए कि उस गांव की व्हाट इज द पॉपुलेशन विल बी आफ्टर द 1 ईयर इफ द ग्रोथ रेट इज 16.66। सो आपको जब मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 58 मल्टीप्लाई 6 एंड 100, सो इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट। ओके, सो आपको क्या करना है, इसको 1/6 लिख देना है इसकी जगह, देन आप इसको इजीली काट सकते हैं और बता सकते हैं कितना हुआ। तो ये दिस इज द एप्लीकेशन। ओके, सो यहाँ पर पूरा टेबल बना देते हैं, देन इट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड थिंग्स। इसी प्रकार से 1/7 कितना हो जाएगा, 14.28%, और यू कैन से 14 इंटू 2/7। ये कैसे आया मैंने अभी बता दिया आपको 1/6 करके। 1/8 विल बिकम 12.5%, और यू कैन से 12 इंटू 1/2, 12 दूनी 24 बटे 25/2। 25/2 मतलब क्या होता है, ऊपर आप 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 100 हो जाएगा, नीचे 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 8 हो जाएगा, तो इतना ही बन जाएगा 1/9। ये आपका हो जाएगा 11 इंटू 11.11%, और यू कैन से 11/1/9%। और इसी प्रकार से 1/10 सबको पता होता है, दैट इज 10%। अगेन नेक्स्ट 1/11 कितना होगा, इट विल बिकम 9.09, और यू कैन से दैट इज 9 इंटू 1/11%, दिस इज द परसेंट। 1/12 कितना हो जाएगा, 8.33%, और यू कैन से 8 इंटू 1/3%। 1/13 it will become 7.69%, or you can say that is the 7 into 9/13. 1/14 it will become 7.14%, or you can say that is the 7 into 1/7%. 1/15 कितना हो जाएगा, that is the 6.66%, और you can say that is the 6 into 2/3। तो ये टेबल है, टेबल आपको याद नहीं करना है, जस्ट आपको इसको देखते रहना है, और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपके क्वेश्चन जो है आसानी से सॉल्व हो पाएंगे। अगर इस आप फ्रैक्शंस का यूज़ करते हैं, ये सभी के सभी जो फ्रैक्शन है, जहाँ पर आपको इस वैल्यू ऐसी क्वेश्चन में अगर कोई वैल्यू आती है तो आप इसको ये पुट कर सकते हैं उसकी जगह, या फिर कोई डिफिकल्ट आपका फ्रैक्शन है या वैल्यू है तो उसकी जगह आप परसेंटेज फिक्स कर सकते हैं। ओके, सो हाउ विल बी यूज दिस टर्म और दिस फ्रैक्शंस इन द परसेंटेज इन द क्वेश्चन। सो लेट अंडरस्टैंड वन द एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ओके, जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल कोई एग्जाम्पल लेते हैं किसी विलेज का, लाइक द पॉपुलेशन ऑफ विलेज इज लाइक the village of population 560, okay, and the growth rate of the village, मतलब एक साल में जो ग्रोथ रेट है वो 12.25% है। एक साल में इतनी वृद्धि हो जाती है, तो गांव की एक साल बाद पॉपुलेशन कितनी होगी आफ्टर द 1 ईयर, if the population of any village is 560 and the growth rate is 12.25, and what will be the population after the 1 year, so it will be become कितनी हो जाएगी। आप इसमें आपके पास जो दिमाग है आप उसके हिसाब से आप फार्मूला लगाएंगे। आपने जो फार्मूला पढ़ा होगा कभी बचपन में, वही फार्मूला क्या होता है, वो समथिंग लाइक दिस 1 + a/100 ऐसे कुछ करके होता है पॉपुलेशन फार्मूला। इसको आपको नहीं लगाना है, ना ही आपको यूज करना है। अगर आपको याद है तो अच्छा है, नहीं है तो और भी अच्छा है, आपको इसको काट देना है। जस्ट यूज दिस फ्रैक्शन परसेंटेज दैट आई हैव यूज, लाइक द पॉपुलेशन 560 एंड द ग्रोथ रेट इज 12.5। ओके, तो जैसे मैंने बताया कि आप इसमें निकालने के लिए आप जब भी 560 को मल्टीप्लाई करेंगे 12.5 से, सो इट विल बिकम लिटिल डिफिकल्ट। आप कैलकुलेशन कर सकते हैं बट इट विल टेक सम टाइम टू कैलकुलेट।
सो व्हाट यू हैव टू डू, यू जस्ट इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 1/8 लिख सकते हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं। ओके, सो जैसे ही आप 1/8 लिखेंगे आप इस नंबर को देख के बहुत खुश हो जाएंगे। जैसे ही आप 560 को मल्टीप्लाई करते हैं 1/8 से, इट विल बिकम 70। मतलब एक साल में जो पॉपुलेशन ग्रोथ हुई है कितनी हुई है, 70। पहले थी 160, नाउ इट विल बिकम 560 प्लस 70, इट विल बिकम 630। एक साल बाद उस गांव की पॉपुलेशन हो गई है 630। यहाँ पर आपने किसी प्रकार का कोई फॉर्मूला यूज नहीं किया है, जस्ट आपने ये परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके इसको आसानी से आंसर निकाल लिया है। सो दिस इज द अप्रोच दैट यू हैव टू फॉलो, और जस्ट यूज योर कॉमन सेंस, नॉट एनी काइंड ऑफ फार्मूला to solve this kind of question. So in the other application of this structure, ये जो स्ट्रक्चर है इसको आपको याद कर लेना है, इसी को हम लोग यूज करने वाले हैं आने वाले सभी क्वेश्चंस में, चाहे वो किसी प्रकार का क्वेश्चन हो, चाहे इंटरेस्ट का हो, डिस्काउंट का हो, प्रॉफिट लॉस का हो, या फिर सक्सेसिव डिस्काउंट का हो, सब में इसी कॉन्सेप्ट का, इसी स्ट्रक्चर का हम लोग यूज़ करने वाले हैं, और इससे जो है आसानी हो जाएगी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बिना किसी फॉर्मूले के। सो देख लेते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं इससे। जैसे मैंने अभी एक आपको एग्जांपल दिया था पॉपुलेशन का, सो उसको पॉपुलेशन निकालने के लिए आपको फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं होती है। सो यहाँ पर हम लोग वही स्ट्रक्चर को यूज़ करेंगे प्रॉफिट लॉस इस सभी में। जैसे फॉर एग्जांपल किसी विलेज, फॉर एग्जांपल किसी प्रोडक्ट की कीमत है 2160, ओके, और इसको किसी शॉपकीपर के द्वारा बोला जाता है कि मुझे इस पर कुछ प्रॉफिट चाहिए, लाइक दी 12.5% प्रॉफिट चाहता है, और वो चाहता है कि इसको सेल कर दे 12.5% के प्रॉफिट के बाद। तो इसकी सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, मतलब क्वेश्चन बन जाता है आपका, कॉस्ट प्राइस ये हो जाएगी 2160, और इतना प्रॉफिट चाहता है वो, ओके, तो व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस। तो ये क्वेश्चन आपका बन जाता है। इसमें आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, सेलिंग प्राइस बराबर कॉस्ट प्राइस प्लस ऐसा कुछ होता है, आई डोंट नो, ऐसा कुछ फार्मूला बनता है। अगर गलत है तो माफ़ कीजिएगा, ये क्योंकि मैं फार्मूला यूज नहीं करता, सो आप भी इसको फार्मूले को यूज नहीं करना है। ओके, जस्ट यूज द अप्रोच दैट आई हैव टोल्ड यू अबाउट द फर्स्ट स्ट्रक्चर लाइक दिस। सो आपको क्या करना है कि जो प्रॉफिट यहाँ पर मेंशन है 2160, दिस इज द कॉस्ट प्राइस, एंड 12.5 दिस इज द प्रॉफिट वो जो चाहता है। सो इसको आप जब मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, सो इट बिकम लिटिल डिफिकल्ट। सो आपको इसको क्या करना है, इसको कन्वर्ट कर लेना है फ्रैक्शन में, दैट विल बी 1/8। मैंने बताया था कि 12.5 को कितना बोलते हैं, 1/8। सो आपको जब इससे आप मल्टीप्लाई करेंगे, सो कितना हो जाएगा, 270। सो जो कॉस्ट प्राइस की 2160 थी, और इसको प्रॉफिट चाहिए कितने की, 270 की। सो सेलिंग प्राइस हो जाएगी इसकी 2160 प्लस 270, ओके। सो आई थिंक इतना हो जाएगा। सो दिस इज द सेलिंग प्राइस। आप देख सकते हैं सेलिंग प्राइस या कॉस्ट प्राइस, इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें किसी प्रकार का कोई फॉर्मूला हमने यूज नहीं किया है। वी जस्ट यूज द स्ट्रक्चर वी हैव डिस्कस अर्लियर, कि कैसे आपको प्रॉफिट लॉस या किसी प्रकार के क्वेश्चन है उनको सॉल्व करना है। लाइक द सेम वे सिंपल इंटरेस्ट में भी इसी प्रकार का आप अप्रोच यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल राम गेव 2160 रुपये टू श्याम, ओके, एट द रेट ऑफ 12.5%, मतलब ब्याज की जो दर है 12.5% है। राम इतना रुपये देता है श्याम को, और बोलता है कि एक साल बाद, जो श्याम बोलता है कि मैं आपको एक साल बाद लौटा दूंगा। सो व्हाट विल बी द अमाउंट दैट हैव टू बी पे बाय द श्याम टू द राम, ये आपको बताना है। सो दिस इज द क्वेश्चन। अब इसमें भी आप सेम अप्रोच यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि 2160 ये जो अमाउंट था, अब इस पर उसका जो ब्याज कितना लग रहा है, 12.5% एक साल का। सो इट विल बिकम 1/8, देन यू जस्ट कैलकुलेट, और ये आपका 270 हो जाएगा। टोटल आपका हो जाएगा 2160, ये प्रिंसिपल अमाउंट है, उसके अलावा जो ब्याज लग रहा है उस पर, दैट इज 270। सो इट विल बिकम, सॉरी, तो इतना आ जाएगा, टोटल आ जाएगा, ये आपका
इंटरेस्ट प्लस टोटल जो पेमेंट उसको करना है श्याम को राम को, इतना हो जाएगा। सो दिस इज दी अप्रोच। यहाँ पर भी आपने कोई फार्मूला यूज नहीं किया है, देख सकते हैं बिना फार्मूले के सभी क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। इसमें आप फार्मूला जो यूज़ करते हैं, जैसे कि किसी गांव की पॉपुलेशन है फॉर एग्जांपल 560 है, ओके, और क्वेश्चन में पूछा गया है कि 2 साल बाद आफ्टर 2 ईयर पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी अगर ग्रोथ रेट जो है 12.5% है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर आप फार्मूला यूज़ करते हैं पॉपुलेशन वाला, कुछ ऐसा पॉपुलेशन 1 प्लस ऐसा कुछ होता है, कितने साल का है उस पर एन का मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड ऐसा कुछ करते हैं। तो आपको इस अप्रोच को यूज़ नहीं करना है, ये फार्मूला नहीं यूज़ करना है, डायरेक्ट आप इसी अप्रोच का यूज़ करेंगे। जैसे कि मैंने बताया था 560 पॉपुलेशन है, अब आप 1 साल का निकाल लीजिए 1/8, 12.5% ये आपका ग्रोथ रेट है, इसको आप 1/8 कर सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 70 जुड़ जाएगा इसमें, तो कितना हो जाएगा 630। मतलब 1 साल बाद पॉपुलेशन इतनी हो जाएगी। अगेन आपको रिपीट कर देना है क्योंकि 2 साल पूछा गया है। सो अगेन 12.5 करके आप जो 1/8 करके आप निकाल सकते हैं कितनी पॉपुलेशन हो जाएगी। सो दिस इज द अप्रोच दैट यू हैव टू फॉलो without using any formula. You can easily solve all the question that is related to this topic or mathematical aptitude. कोई भी आपने कोई फार्मूला यूज़ नहीं किया है, we have just follow the simple और the you can say basic structure. ये जो स्ट्रक्चर है इसको आपने फॉलो किया है और इजीली आप इजीली कैलकुलेट द क्वेश्चन। सो दिस इज द अप्रोच, ओके गाइज। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कवर other topic by using the same structure, and also learn some other structure that is very important for other kind of question. So this is all about this video guys. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा then kindly please like, share and subscribe, and kindly comment box में ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। Thank you very much.